দুবাইতে নিয়োজিত বাংলাদেশের কনসুল জেনারেলের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলা বইমেলায় ভূয়সী প্রশংসা কুড়ালো আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি আদান প্রদানে দুবাই এবং বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় খুব শীঘ্রই মৌ চুক্তি করতে চলেছে। দুবাই থেকে ফিরে কথা জানালেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর রাজীব মোহন পন্ত। চলতি মাসে 4 থেকে 6 তারিখ পর্যন্ত দুবাইতে নিয়োজিত বাংলাদেশের কনসুল জেনারেল মোহাম্মদ জামাল হোসেনের কার্যালয়ের চত্বরে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয় দুবাই বইমেলা। উপাচার্য রাজীব মোহন পন্তের নেতৃত্বে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডক্টর বরুণজ্যোতি দাস এবং ডক্টর বেলা দাস এই বইমেলায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুচরিতা ব্যানার্জি, কবি কাকুলি ঘোষ, তানিয়া চক্রবর্তী, মৃণাল কান্তি সাহা বইমেলায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডক্টর বরুণজ্যোতি দাস এই বইমেলায় প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বাংলা এবং আরবি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের একলা চলরে গানটি পরিবেশনা করেন সেখানকার সুচেতা সুরেশ। যেহেতু নিজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত, যে কবিতাকে আমরা বা একটা উপন্যাসকে আমরা একটু কাটাছেড়াও করি। এবার আমরা কোন পাঠকের জন্য লিখছি আমরা যদি একটু দেখি, তাহলে আমাদের সাথে নির্দিষ্ট পাঠক কি থাকে, না আমরা সব পাঠকের জন্য লিখি? এই প্রসঙ্গে আমি কেন এই প্রশ্নটা করলাম, ধরুন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক খন্দকার আশরাফ হোসেন, এবং আমরা চট্টগ্রাম থেকে একটা পত্রিকা বেরিয়েছিল দীর্ঘদিন, লিরিক নামে একটি পত্রিকা, যিনি সম্পাদনা করতেন জিল্লুর রহমান, এখানে মেডিকেল কলেজে তিনি ডাক্তার ছিলেন, সম্ভবত এখন ঢাকাতে আছেন। তো তিনি লিখছেন উত্তর আধুনিক কবিতা, অর্থাৎ কিন্তু পোস্টমডার্ন কবিতা নয়। পোস্টমডার্ন কবিতা কেন নয়, তার আমরা পোস্টমডার্ন অর্থে আমরা উত্তর আধুনিক কবিতা বলি। তিনি বলছেন, অর্থাৎ তাদের ভাবনার মধ্যে আমাদের কলকাতাতে অমিতাভ গুপ্ত বলে একজন আছেন, অর্থাৎ তারা একটা আন্দোলন তৈরি করেছিলেন। কি আন্দোলন? অর্থাৎ আমরা যে অর্থে আধুনিকতা নির্মাণ করেছি আমাদের সাহিত্যের মধ্যে, আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে, আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি বলুন, বাঙালি সাহিত্যের মধ্যে বলুন, আমরা যে একটা নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে থাকার প্রবণতা, সেখান থেকে তিনি দাঁড়িয়ে বলছেন সে করে আরো জল দাও। দুবাইতে অনুষ্ঠিত এই বইমেলায় যোগ দিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর পান্ত খুশি ব্যক্ত করেন। তিনি CNN 24-এর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় জানান, দুবাইয়ের ধামানি ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশের কয়েকটি ইউনিভার্সিটি ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করার জন্য, ফলে খুব শীঘ্রই শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আদান প্রদানে মৌ চুক্তি করা হবে। তার বক্তব্য, শুধু বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করলে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়বে। বাংলা সাহিত্যকে অনুবাদ করে বিশ্বের কাছে বাংলা ঐতিহ্য এবং পরম্পরাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। बांग्लादेश काउंसिल जर्नल जो हैं, उन्होंने एक दुबई में एक बुक फेयर का आयोजन किया था। 3 दिन का बुक फेयर का आयोजन किया था। श्री जमाल साहब खुद भी एक बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं और चित्रकार हैं। वो अभी वहाँ पर काउंसिल जनरल हैं और वहाँ की दुबई की काउंसिल को हेड कर रहे हैं। तो उनके निर्देशन में एक 3 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर हुआ। उसमें पूरे विश्व के ही लोग आए थे, पूरे बांग्ला भाषी लोग, और भारत से हमारे विश्वविद्यालय ने उसमें प्रतिनिधित्व किया। मैं भी उसमें गया था, और हमारी डीन जो हैं प्रोफेसर बेला दास जी और एक डॉक्टर बरुणज्योति जी, ये हमारे विश्वविद्यालय से गए थे, और कुछ और भी वेस्ट बंगाल से कवि, लेखक, उन लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छी बात ये थी कि एक बांग्ला साहित्य के अलावा एक उसमें जो भारत और बांग्लादेश की एक जो दोस्ती की परंपरा रही है, वो भी काफ़ी दिखने को मिली। उसकी भी एक झलक वहाँ पर मिली। एक ही संस्कृति, एक भाषा, एक तरह के लोग, एक इस चीज़ को बिल्कुल आश्वस्त हुए हम लोग कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ क्रिएट होती हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ बनती हैं, वो दिलों में नहीं लाइन खींच पाती हैं,
हालांकि हम अलग अलग देश बन गए हैं, पर फिर भी अभी दिलों से हम एक हैं, इस तरह का भाव वहाँ पर दिखा। बहुत अच्छा लगा जा वहाँ पर। उनका अभी भी वो सिलचर आना पसंद करते हैं, वो कलकत्ता आना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारी वहाँ पर है, कुछ लोगों की शादियाँ। कल्चरली किसी भी प्रकार का भेदभाव वहाँ नज़र नहीं आया। तो बंगला साहित्य वहाँ पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर बात हुई, महाश्वेता देवी पर बात हुई, और भी नजरुल इस्लाम जी पर बात हुई। काफ़ी अच्छे, और अच्छी बात ये लगी कि युवा जो लोग हैं अभी, रविंद्र गुरुदेव के समय के जो लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं वो तो हैं ही। बंगाल का साहित्य तो बहुत रिच है, बंगला साहित्य बहुत रिच है, पर अभी भी जो नए युवा लोग हैं उनके साहित्य को भी वहाँ जानने का मौका मिला। तो लगता है कि जो बंगला संस्कृति जो है और सुदृढ़ होते जा रही है। जो ये एक मूवमेंट शुरू हुआ था गुरुदेव या नजरुल इस्लाम जी के समय से, वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। से भी जो हमारे प्रोफेसर्स ने उसमें भागीदारी करी, यहाँ की पुस्तकें वहाँ पर लेके गए, उनके वहाँ पे एग्जीबिशन भी लगाई गई, और उनको लास्ट में हम प्रेजेंट करके आए हैं सारी बुक्स। उनको बहुत सराहा गया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के कार्यकलापों से वो लोग वाकिफ़ हैं, और उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर करी कि हम अपने छात्रों को यहाँ भेजना चाहेंगे। वहाँ पर मेरी कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से मुलाकात हुई, जिन्होंने ये इच्छा जाहिर करी कि हम लोग साथ साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे। बांग्लादेश की विश्वविद्यालय थे, और दुबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मेरी मुलाकात हुई। वो अरबी हैं बेसिकली। उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी कि साथ साथ हम लोग यदि कोलैबोरेट कर सकें तो अच्छा है। मैं उनको भी यहाँ से फॉर्मल एक इनविटेशन भेजूँगा कोलैबोरेशन के लिए। बांग्लादेश की 3-4 यूनिवर्सिटी से हम कोलैबोरेट MOU साइन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। एक तो कल्चरल एक्सचेंज तो है ही, क्योंकि हमारी संस्कृति एक है, और दूसरा चूँकि बांग्लादेश बहुत ही कन्वीनियंट है हमारे लिए। करीमगंज से 50 किलोमीटर दूर सिलेट आ जाता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। थोड़ा सा दूर, तो हम लोग तो बहुत आसानी के साथ उनके साथ संबंध अपने बढ़ा सकते हैं। उनके शिक्षक, जैसे कि आज आपने देखा, वहाँ के हमारे जो वर्कशॉप चल रहा है, बांग्लादेश से आए हैं हमारे एक्सपर्ट। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम जो हम करेंगे, हम लोग वहाँ की फैकल्टी को बुलाना चाहेंगे यहाँ पर। वहाँ पे कोई कार्यक्रम है तो हम अपने स्टूडेंट को वहाँ भेजना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सुविधाजनक है। तो बाई रोड हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट है। इस मित्रता को हम और सुदृढ़ करना चाहेंगे। आयाम दिखा, एक नई डायमेंशन दिखी, जो कि एक बहुत ही बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि बांग्ला साहित्य केवल यदि बांग्ला में लिखा जाए तो उसकी एक सीमाएं बंध जाती हैं, एक सीमाओं में बंध के रह जाएगा वो। जैसे कि मैं बांग्ला पढ़ नहीं सकता, तो वो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बहुत सारी बांग्ला साहित्य से परिचित नहीं हो पाया। पर मैं बांग्ला साहित्य से परिचित हो पाया, बचपन से मैंने गीतांजलि पढ़ी, जो कि गुरुदेव का इंग्लिश का वर्जन, जो कि गुरुदेव ने खुद ट्रांसलेशन किया था। ऐसे ही उनकी बहुत सारी कहानियाँ मैंने बचपन में पढ़ी हैं, प्रायश्चित, और एक बहुत सारी उनकी जो कहानियाँ पढ़ी जो कि हिंदी में अनुवाद था। ये चीज़ मुझे इस फेस्टिवल में, इस बुक फेयर में देखने को मिला कि अनुवाद, वहाँ पर बहुत सारी बांग्ला कविताओं का, बहुत सारी बांग्ला टेक्स्ट का वहाँ पर अनुवाद हुआ। और सबसे एक और बड़ा अच्छा दिखा कि एक वहाँ के जो प्रसिद्ध बांग्लादेश के एक लेखक हैं, जनाब चौधरी साहब, वो वहाँ के बांग्लादेश साहित्य अकादमी से भी जुड़े हुए हैं। उनकी पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ, और ये बांग्ला साहित्य अभी अरब संस्कृति का भी एक हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये हमें धीरे धीरे प्रसारित इसको करना है, क्योंकि बांग्ला साहित्य बहुत ही है। इसको अलग अलग भाषाओं में जब इसको हम कर पाएंगे तो पूरा विश्व जानेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा कल्चर है।